मैं आपको बताऊंगा वहां पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। Within 1 or 2 minutes, we are going to start the class. So let me clear one thing. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? And is this screen visible to you people? Is this screen visible to you people? Very good. Very good. Okay, that's great. That's great. That's great. Okay. Now we'll start our class. So our today's class is S block elements. This is lecture 09. In this class, we'll study compounds of alkali metals. Already we have discussed one compound, and this is the second compound that we are going to discuss. That is sodium hydroxide. So this is commonly known as caustic soda. So we are we'll discuss over here caustic soda. So let us start the topic over here. Take your pen and paper. We are going to start the class now. So our today's topic is compounds of alkali metals. So आज का जो compound है जो हमें discuss करना है, that is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. तो sodium hydroxide जो compound है, इसको commonly कहते हैं, it's commonly known as caustic soda. This compound is commonly known as caustic soda. It is known as caustic soda. Commonly, sodium hydroxide is known as caustic soda. Now the question arises, why sodium hydroxide has caustic properties? Why sodium hydroxide has caustic properties? This is the first type of the question that can be raised in our minds. So why sodium hydroxide has caustic properties? Why it has caustic properties? Why we called it caustic soda? That means it should have properties of, it should have caustic properties. Now why it does have caustic properties? तो बेसिकली ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, it reacts with proteins present inside the skin, मतलब skin proteins. It reacts with skin protein. So you very well know what are skin proteins. तो ये बात आपको बायो से पता है. It reacts with skin proteins and it forms. It reacts with skin proteins. It forms loose. It forms loose. अरे यार कौन है जो entered हुआ? एक सेकंड. It reacts with skin proteins. It forms loose pasty mass. It forms loose pasty mass. Loose pasty mass. So whenever we have sodium hydroxide, and if it reacts with our skin, it forms loose pasty mass. Clear? This formation of loose pasty mass, it is known as caustic property. This is known as caustic property. Well, means it gets stick to your fingers, your skin. It gets stick to your finger. This property is known as caustic property. क्या ये बात clear हुई? Sodium hydroxide, why it shows caustic property? What is the reason? The reason is जो sodium hydroxide है, it reacts with the skin proteins. It forms a loose pasty mass. This property is known as caustic property. Clear? This property is known as caustic property. Clear हुआ? सब बच्चों को ये बात clear हो गई? This property is known as caustic property. तो कभी आ सकता है एग्जाम में, sodium hydroxide reacts with skin proteins to form what? Loose pasty mass. And because of this, it has caustic property. Clear? तो ये point number 1 था जो हमने यहाँ पे explain किया. Now next point जो है जो हम discuss करेंगे, that is method of preparation. Method of preparation. हम commercial method की बात करेंगे यहाँ पे. Method of preparation. Sodium hydroxide जो है, it is prepared from, commercially it is prepared from brine solution. Now what is brine solution? What is brine solution? Brine solution क्या होता है? It's aqueous NaCl solution. Aqueous NaCl solution is called a brine solution. It is prepared from brine solution. What is brine solution? It is aqueous NaCl solution. Sodium hydroxide is prepared from, commercially, industrially, it is prepared from brine solution.
brine solution is aqueous NaCl solution. It is prepared in a cell known as Caster-Kilner cell. बहुत ही important है. It's prepared in a cell known as Caster-Kilner cell. It is prepared in Caster-Kilner cell. बहुत ही important है for competitive exams. It's very very important for competitive exams. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस में प्रिपेयर करते हैं? Caster-Kilner cell. So this thing you have to remember. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस में प्रिपेयर करते हैं? Caster-Kilner cell. So this is very very important. Sodium hydroxide is prepared in Caster-Kilner cell. तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो. हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे Caster-Kilner cell में using brine solution how we can prepare sodium hydroxide. हो गया स्क्रीनशॉट? आई होप स्क्रीनशॉट हो गया. वेरी गुड. तो ये हमारे पास जो है, ये मैंने यहाँ पे जो सेल बनाई, दिस इज Caster-Kilner सेल. दिस इज Caster-Kilner सेल. तो अब हम इस Caster-Kilner सेल को देखेंगे. देखो ये जो Caster-Kilner सेल है, इसमें हमारे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड है. देखो ये सोडियम प्लस आयन्स है. आई विल टेक अ डिफरेंट कलर. तो सी यहाँ पे आपके सोडियम प्लस आयन्स है और यहाँ पे आपके Cl माइनस आयन्स है. इजंट इट? मतलब एक्वस सोडियम क्लोराइड मतलब क्या है? दिस सोडियम क्लोराइड इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन सॉल्यूशन. तो यहाँ पे आपके सोडियम प्लस आयन्स भी होंगे, Cl माइनस आयन्स भी होंगे. And there are electrodes present in the cell. This is your cathode. This is cathode. It's a negatively charged electrode. This is cathode. And this one is anode. ये जो electrode है, this is anode. This is anode. यहाँ पे जो आपका cathode है, it is made up of mercury electrode. This is very very important. Cathode is made up of mercury electrode. लेकिन हम बीच में inner compartment में भी कभी cathode को use करते हैं. जो इनर कंपार्टमेंट में आपका कैथोड होता है, दैट इज आयरन फिलिंग्स. दैट्स आयरन फिलिंग्स. आयरन फिलिंग्स. सो आयरन फिलिंग्स एज वेल एज योर मर्करी एक्ट्स एज अ कैथोड. तो दो में से एक कैथोड एक्ट करेगा. यूजुअली आयरन फिलिंग्स, बट मोस्टली हम देखेंगे कि जो हमारी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज कैथोड. तो मर्करी एक्ट्स एज कैथोड. क्लियर? तो एनोड जो यहाँ पे होता है, दिस इज कार्बन इलेक्ट्रोड. एनोड इज कार्बन इलेक्ट्रोड. यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है. एक याद रखना है, Caster-Kilner सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? दिस इज ब्राइन सोल्यूशन. ब्राइन सोल्यूशन मतलब यहाँ पे हमारा ब्राइन सोल्यूशन होता है. ब्राइन सोल्यूशन मतलब aqueous NaCl solution, and it dissociates to form Na plus ions and Cl minus ions. नंबर सेकंड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो हमारा कैथोड है, इट इज यूजुअली मर्करी इलेक्ट्रोड. इट इज मर्करी इलेक्ट्रोड बिकॉज आपकी टेक्स्ट में दिया गया है मर्करी इलेक्ट्रोड, सो इट्स मर्करी इलेक्ट्रोड. एंड जो आपका यहाँ पे एनोड है, इट इज कार्बन इलेक्ट्रोड, मतलब इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स. It is made up of graphite rods. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? वेरी गुड. तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा. वेरी गुड. अगर यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, बस उसके बाद क्या देखना है, जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, दैट्स aqueous NaCl. Aqueous NaCl, it will be in the form of Na plus ions and Cl minus ions, aqueous. तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे दो रिएक्शंस होंगी. One reaction will take place at cathode and other reaction will take place at anode, isn't it? One reaction will take place at cathode and other reaction will take place at anode. मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा. We'll write reaction at anode. तो ये जो हमारा एनोड है, दिस इज पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. तो आप मुझे बता, इन दो आयन्स में एनोड पे कौन सा आयन माइग्रेट करेगा? एनोड पे कौन सा आयन माइग्रेट करेगा? एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है. आउट ऑफ दीज टू आयन्स व्हिच वन विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड? द क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड. मतलब एट एनोड व्हाट विल हैपन, आपका जो क्लोराइड आयन है
it will change into Cl2 gas plus it will give electrons, मतलब इसकी oxidation होगी. So I'll write 2 times. So these are 2 electrons. मतलब at anode oxidation takes place. Oxidation of what? Oxidation of chloride ions takes place so that हमारे पास क्लोरीन गैस यहाँ से रिमूव होता है. देखो यहाँ से क्लोरीन गैस रिमूव होता है. You can see it over और here यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस रिमूव होता है. Isn't it? तो एनोड पे आपका क्लोरीन गैस बनता है. क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नाउ आप देखेंगे एट कैथोड व्हाट विल हैपन एट कैथोड. So which of the ion will move towards cathode? So sodium will move towards cathode, Na plus. Na plus will move towards cathode, it will accept electron. तो ये आपके पास बनाएगा Na. But this sodium get stick to the, ये जो सोडियम हमारा है ये स्टिक हो जाता है किस पे? It get stick to the mercury electrode. इस पे सोडियम आपका स्टिक हो जाता है, मतलब it forms sodium amalgam. What is amalgam? Sorry, this is known as sodium amalgam. It forms sodium amalgam. ना amalgam किसको कहते हैं? कोई भी मेटल जब आपका मरकरी के साथ रिएक्ट होता है then it is known as amalgam. तो यहाँ पे आपका कोई भी अलॉय होगा जिसमें एक कंपोनेंट मरकरी होगा, that's known as amalgam. तो this is sodium amalgam. तो यहाँ पे हमारा सोडियम अमलगम बनता है. क्लियर? क्लियर? सोडियम अमलगम बनता है. क्लियर हुआ? तब बच्चे बोलो ये क्लियर हुआ, यहाँ पे सोडियम अमलगम बन गया. ना आप देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए आई विल टेक इट 2 टाइम्स. आई विल टेक इट 2 टाइम्स बिकॉज मरकरी जो है इट्स बाइवैलेंट, इसलिए मेरे यहाँ पे 2 सोडियम यूज होंगे. तो मतलब ओवरऑल मेरे पास NaHg मिलता है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो आपका एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, मतलब इसमें वाटर भी प्रेजेंट है बिकॉज यू नो electrical conductivity takes place in aqueous solution or in molten state. तो यहाँ पे वाटर भी है, मतलब ये सोडियम अमलगम जो है इट रिएक्ट्स विद वाटर. ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट फॉर्म्स NaOH प्लस आपका यहाँ पे मरकरी निकल जाएगा. क्लियर हुआ सबको? NaOH बनेगा प्लस मरकरी. सो मैं कहूंगा एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस. Reduction of what? Reduction of sodium ions. तो at cathode our sodium hydroxide is formed. कैथोड पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. क्लियर? कैथोड पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. क्लियर हुआ सबको? कैथोड पे हमारा सोडियम एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ मर्क्यूरी. वेरी गुड. तो कैथोड पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इट्स फॉर्मड एट कैथोड. अब आपको याद क्या रखना है? कास्टर किल्नर सेल जो है इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH. तो आपको याद रखना है यहाँ पे इस सेल में कैथोड क्या है और यहाँ पे एनोड क्या है. आपको याद रखना है कैथोड पे कौन क्या चीज मिलती है. कैथोड पे NaOH प्लस यहाँ पे H2 गैस भी रिलीज होता है. देखो यहाँ पे H2 गैस भी रिलीज हुआ है. तो यहाँ पे आपको H2 गैस भी मिलता है और यहाँ पे आपको क्या मिलता है? क्लोरीन गैस. बस ये बात है इसमें याद रखनी है. मुझे बता किसको क्लियर हुआ? कास्टर किल्नर सेल. इसको क्लियर हुआ? कास्टर किल्नर सेल. सबको क्लियर हुआ? एक बार फिर इसको आप लोग याद करना तो आपका हो जाएगा. ये सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. इस टॉपिक में अब तक कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? अब तक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड. तो आपको लिखना है कास्टर किल्नर सेल. Number second, in during the preparation of NaOH in Caster Keller cell, the species which acts as anode and the species which acts as cathode. This is second type of question. And the third type of question is during the preparation of Caster sodium hydroxide in Caster Keller cell, the gas that's evolved at anode and cathode respectively are. Clear? मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ तक आ सकते. क्लियर? इनको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा. यहाँ तक क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी. जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ व्हाइट सोलिड. इट्स व्हाइट सोलिड. इसका कलर जो होता है दैट्स व्हाइट. इट्स अ व्हाइट सॉलिड.
तो जरूरी याद नहीं रखना है, बिकॉज जब भी आप लैब में जाओगे यू विल सी इट, इट्स व्हाइट इन कलर. नंबर सेकंड, इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर. इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. हाईली सॉल्युबल इन वाटर मतलब इट शुड बी वेरी मच आयोनिक. Highly soluble in water. Ionic compounds are highly soluble in water. And it is bitter in taste. And is bitter in taste. It is bitter in taste. It is highly soluble in water and bitter in taste. So number third, it is corrosive in nature. What is corrosive in nature? मतलब इसका corrosion भी होता है, खराब होता है. On exposure to moisture, इसका कलर खराब होता है. मतलब it absorbs moisture. It's corrosive in nature. It is corrosive in nature. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब भी आप स्टोर करोगे विद अ लिड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इसको स्टोर करना है. एंड इट इज सोपी टू टच. इट इज सोपी टू टच मतलब इट गेट स्टिक्ड टू योर बॉडी पार्ट्स. इट इज सोपी टू टच. अगर आप फिंगर से टच करोगे इट गेट स्टिक्ड टू योर फिंगर्स. तो नंबर फोर्थ लिखो, इट इज sparingly soluble. Now what is meant by sparingly soluble? Which is not 100% soluble, जिसका small amount soluble होता है. This sparingly soluble in alcohol. Soluble in alcohol. Because alcohol आपका उतना ionic part नहीं है. Clear? These are certain physical properties. Clear? उसके बाद डिस्कस करेंगे chemical properties को. तो physical properties में एक क्वेश्चन बन सकता है. क्या क्वेश्चन बन सकता है? द करेक्ट स्टेटमेंट या द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, नंबर फर्स्ट, NaOH is highly soluble in water. NaOH is highly soluble in water. Highly soluble in water, but and highly soluble in alcohol. Number second, it is less soluble in alcohol but more soluble in water. मैं यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट्स लिखूंगा. विच स्टेटमेंट इज राइट? तो मुझे बताओ विच स्टेटमेंट इज राइट. विच स्टेटमेंट इज राइट? तो मुझे बताओ विच स्टेटमेंट इज राइट. अरे यार क्या बोलते हो मेरा. यहाँ पे लिखा है इट इज लेस सॉल्युबल. स्पेरिंगली सॉल्युबल मींस वेरी लीस्ट सॉल्युबल, मतलब थोड़ा अमाउंट इसका डिसॉल्व होगा इन अल्कोहल. लेस सॉल्युबल. तो देखो इट इज लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल, दिस इज करेक्ट, बट मोर सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज करेक्ट. तो सेकंड आपका करेक्ट होगा यहाँ पे. हाँ सेकंड करेक्ट होगा. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मतलब ये बात भी आपको क्लियर हो गई. तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी टेक्स्ट में बहुत कम है बट आती है कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी. दैट्स व्हाई हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. हो गया स्क्रीनशॉट? नाउ सी, ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, अगर मैं H3PO3 को लूंगा, दिस इज फास्फोरिक एसिड. अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करूंगा, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा? तो लेट मी टेक इट लाइक दिस. आपको बताना है यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होंगे. क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा इस रिएक्शन में कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होंगे? इस रिएक्शन में कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होंगे? तो आपको बताना है इस रिएक्शन में जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा उसको हम अभी देखेंगे. आपको बताना है कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होंगे, कितने मोल्स ऑफ सोडियम. इक्विवेलेंट्स इज बेटर टर्म. 3 ऐसे नहीं बोलते हैं 3. किसी ने भी जिसने सेकंड बोला मुझे लगता है वो करेक्ट है. ऐसे 3 नहीं बोलते हैं. देखो कैसे बोलेंगे. देखो मैंने आपको बताया अगर पहले इसकी स्ट्रक्चर बनानी होती है तो ये कौन सा एसिड है? ऑक्सी एसिड. स्ट्रक्चर बनाओ, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट 1 OH, इजंट इट? अब जाके आप इन वैलेंसीज को बराबर करो तो यहाँ पे OH,
तो आपके पास 3 ऑक्सीजन आ गए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गई, तो एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा। Now how many ionizable hydrogens are over there? This is ionizable, this is ionizable. अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, मतलब Na+OH-, isn't it? तो क्या होगा, OH- इस प्रोटॉन को खा जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा। Why this bond will break towards oxygen? Because it is more electronegative. This O- will attack Na+. तो सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल हमें यहाँ से जरूरत पड़ेगा, Na+OH-। तो OH- इसको खा जाएगा, मतलब यहाँ से माइनस टाइम्स वाटर, यहाँ से माइनस टाइम्स वाटर, isn't it? -2 molecules of water, मतलब यहाँ से एक मॉलिक्यूल, यहाँ से एक मॉलिक्यूल। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इट विल ब्रेक टुवर्ड्स दिस साइड, दिस विल बी नेगेटिव, ये सोडियम पे अटैक करेगा। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O- Na+, सिंगल बॉन्ड O- Na+, दैट इज सॉल्ट, सिंगल बॉन्ड H। तो हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स आर यूज्ड? 2 इक्विवेलेंट्स आर यूज्ड। क्लियर? देखा कैसे क्वेश्चन करना है, देखा कैसे क्वेश्चन करना है। नाउ सी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, कितने सोडियम है, 1 और 2, Na2। कितने हाइड्रोजन है, 1, Na2H। कितने फास्फोरस है, 1। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3। तो दिस इज द प्रोडक्ट, प्लस आपके पास यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज। इसको ये रिएक्शन क्लियर होगी। कैसे निकालते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ सबको? क्लियर? हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स आर यूज्ड? 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे बता इसमें कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होंगे? H3PO2। अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करूंगा, तो हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एंड हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। और मुझे बता यहाँ पे जो प्रोडक्ट ए बनेगा, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? तो देखो यहाँ पे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस एन ऑक्सो एसिड, तो P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, इजंट इट? अच्छा, आपके पास 2 ही ऑक्सीजन एटम है, सॉरी हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन एटम है, एक सेकंड, हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन एटम है। लेट मी इरेज दिस। हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन एटम है। नाउ सी, तो देखो यहाँ पे दिस विल बी H एंड दिस विल बी H। यहाँ पे आपका एक ही आयनाइजेबल OH ग्रुप है, देयरफॉर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्विवेलेंट यूज होगा। मतलब दिस OH नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H+ आयन, मतलब यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज होगा, मतलब यहाँ एक आएगा आंसर, यहाँ भी एक आएगा आंसर। अब प्रोडक्ट को बताना है, प्रोडक्ट क्या आएगा? P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ONA, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट? 1 और 2 H, मतलब H2। पहले Na, पहले Na को, यहाँ पे Na, तो उसके बाद H2 को, उसके बाद PO2 को, दिस इज योर A। गॉट इट? कैसे क्वेश्चन आ सकता है? क्लियर? NaH2PO2, बहुत बढ़िया। आ गया ये समझ में? सबको आ गया ये समझ में? ऐसे रिएक्शंस कैसे करनी है, हाउ टू अप्रोच द रिएक्शन, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया इन रिएक्शंस को कैसे अप्रोच करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन कैसे आएगा? फर्स्ट सॉरी, क्वेश्चन कैसे आएगा? फर्स्ट द question will be asked, how many equivalents of sodium hydroxide are used? Number second, the question will be asked, what is the product of the reaction and how many water molecules are released? Clear? तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन रट्टा नहीं मारनी है। अगर आपने रट्टा मारा तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू रॉन्ग आंसर इन द एग्जामिनेशन। तो रट्टा नहीं मारना है, बेसिकली आपको मैकेनिज्म समझना है क्या होता है, तो कैसे होता है वो बात आपको समझनी है। क्लियर? मतलब ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। आई विल डिस्कस सर्टेन मोर रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस में डिस्कस करूंगा। हो गया स्क्रीनशॉट इसका? सब बच्चे बोलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 विद सोडियम हाइड्रोक्साइड।
रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे बोलो जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ Na+H-, OH-। OH- will act as a base। तो बेस को कभी एसिड के साथ ट्रीट करो तो ये आपका H+ खा जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, मतलब यहाँ पे आपका जो नाइट्रिक एसिड है इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H+ NO3-। सोडियम हाइड्रोक्साइड विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड OH-। OH- will abstract this H+, मतलब यहाँ से आपका वाटर मिलेगा एक प्रोडक्ट, प्लस यहाँ पे आपका सोडियम नाइट्रेट मिलेगा NaNO3। क्लियर? मतलब बहुत इजी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, मतलब इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, आपको पता है ये बात, isn't it? एक और रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, HNO2 नाइट्राइट, इसको ट्रीट करेंगे विद NaOH, व्हाट विल हैपन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, तो आपका NaNO2 बनेगा सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइड बनेगा, प्लस साथ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब आपको मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिकली hydroxides of group first and group second, they are all strong bases। क्लियर? तो नंबर थर्ड हमारे पास है H2SO4। H2SO4 को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाओगे व्हाट विल हैपन? तो यहाँ से ये दो हाइड्रोजन जो है दिस विल बी टेकन बाय OH-, बिकॉज H2SO4 की स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द ऑक्सो एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। वी हैव टू आयनाइजेबल प्रोटॉन्स, इसको एक OH- खाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल, इसको एक और OH- खाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 2 NaOH। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, जो दो सोडियम है वो यहाँ और यहाँ अटैच होंगे, Na2SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर? क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई या ना हुई? ये बात किसको क्लियर हुई? वेरी गुड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख के रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होगा तो एसिड और बेस पे रिएक्शन होगी, वाटर रिलीज होगा, बट अगर आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड। कहाँ पढ़ाया है मैंने दिस अ न्यूट्रल ऑक्साइड? ये मैंने पीरियोडिसिटी पे पढ़ाया है, दिस अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड के साथ अगर आप नॉर्मली NaOH रिएक्ट करोगे देयर विल बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बट अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन करेंगे, एट ऑर्डिनरी देयर विल बी नो रिएक्शन, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर व्हाट विल हैपन? एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अगर आप रिएक्शन करोगे तो आपका सोडियम फॉर्मेट बनेगा HCOONA, दिस इज सोडियम फॉर्मेट, मतलब ये HCO और ONA। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे करोगे देयर विल बी नो रिएक्शन, व्हाई? बिकॉज यहाँ जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन जो ऑक्साइड आपने लिया इट इज न्यूट्रल, इट इज नॉट एसिडिक। अगर एसिडिक होता तो जल्दी रिएक्शन करता, लेकिन इट इज नॉट एसिडिक, इट इज न्यूट्रल। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 2-4 रिएक्शंस हो रहे हैं, इनको डिस्कस करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? इसको मार्क करके रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। तो नेक्स्ट लिखो हमारे पास, इफ इट रिएक्ट्स विद P ब्लॉक मेटल्स, P ब्लॉक मेटल्स मतलब फॉर एग्जांपल टिन के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल लेड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोल्यूशन बोले तो NaOH प्लस वाटर, इफ इट रिएक्ट्स विद टिन लेड, लाइक टिन है लेड है, मतलब किसके साथ? P ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा, नॉट मेटल्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, और दीज आर आल्सो मेटल्स। P ब्लॉक मेटल्स या एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होता है, H2 इज एवॉल्व।
So this is again very important. This is very important. H2 gas is evolved over here. तो अगर आपका H2 गैस निकल गया तो यहाँ पे क्या बनेगा? बस इसको बैलेंस करो आप. H2 गैस निकल गया मतलब आपका Na, आपका यहाँ पे Na, तो इसको टेक दिस 2 टाइम्स, या फिर भी इसको लास्ट में बैलेंस करेंगे. दिस इज Na2SnO3. दिस इज द टाइप ऑफ द कंपाउंड. तो इसको क्या कहते हैं? इसको टिन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड सोडियम सिटिनेट. दिस इज कॉल्ड सोडियम सिटिनेट. सोडियम सिटिनेट आपका बनता है यहाँ पे. सर मुझे स्क्रीनशॉट नहीं आता, थोड़ा बैक करो. अच्छा मैं बैक करूंगा. देखो देखो ये आपका बैक हुआ, बस हो गया. चलो जल्दी से. सोडियम सिटिनेट आपका बनेगा. तब तक इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करो. तब तक इस रिएक्शन को आप बैलेंस करो जब तक ये बच्चा स्क्रीनशॉट लेगा. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ आपके ये वाले कंपाउंड्स बनेंगे. हो गया, वेरी गुड. तो नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे. यहाँ पे ये जो एलिमेंट है टिन अगर रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा Na2SnO3. दिस इज कॉल्ड सोडियम सिटिनेट. सिमिलरली आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करो. एक्वस बोले तो वाटर साथ है विद लेड, तो आप क्या बनेगा? Na2PbO3. पीबी को लेड कहते हैं, प्लम्बाइन इसको कहते हैं, तो सोडियम प्लम्बेट. सोडियम प्लम्बेट. This is called sodium plumbate plus H2 gas will be evolved. Clear? Clear हुआ? Clear हुआ? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई. Very good, बहुत बढ़िया. One more reaction is action with non-metals. These are metals. Now action with non-metal. Reaction with non-metal is different. Reaction with non-metals. इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है दैट इज P4. फास्फोरस इंपॉर्टेंट है. तो फास्फोरस के साथ रिएक्ट करो एक्वस NaOH को. एक्वस NaOH को देखो यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के केस पे आपके गैसेस एवालो होंगे. जो नॉन मेटल होगा उसका गैस एवालो होगा. मतलब फास्फोरस का कौन सा गैस बनेगा यहाँ पे? PH3. PH3 इज कॉल्ड अ फॉस्फीन. तो फॉस्फीन विल बी एवॉल्व. यहाँ पे आपका फॉस्फीन एवालो होगा. प्लस यू विल गेट द कंपाउंड. Plus you will get the compound NaH2, plus you will get NaH2PO2. So this is very important. This is very important. Plus you will get the compound NaH2PO2. बस ये बात आपको याद रखनी है. Plus you will get the compound NaH2PH2. Now the last important thing is अगर आप ट्रांजिशन मेटल आयन्स के साथ रिएक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल निकल 2 प्लस, फॉर एग्जांपल आपका Fe2 प्लस Fe3 प्लस है, फॉर एग्जांपल आपका कॉपर 2 प्लस है, फॉर एग्जांपल आपका क्रोमियम 3 प्लस है. तो लाइक दिस इतने सारे आयन्स ट्रांजिशन मेटल आयन्स अगर इनके साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स. Sodium hydroxide forms corresponding hydroxides of transition metals. तो क्या बनता है? corresponding hydroxides. फॉर एग्जाम्पल निकल 2 प्लस को ट्रीट करेंगे विद NaOH, तो क्या बनेगा? निकल हाइड्रोक्साइड. 2 प्लस है तो 2 OH, मतलब NiOH होल ट्वाइस. तो दिस इज इन अ लिमिटेड रिएजेंट. अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट में काम करेंगे, मतलब लेस क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे, तो आपका निकल OH होल ट्वाइस बनता है. बट अगर आप इसको एक्सेस में यूज करोगे, इफ यू यूज इट इन एक्सेस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NaOH के साथ एक्सेस NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, यू गेट NiOH होल 4 2 माइनस. ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यू कैन राइट दिस कंपाउंड लाइक दिस, अभी मैं बताऊंगा। मतलब ट्वाइस माइनस के बजाय आप Na+2Na+ रख सकते हो, इसको न्यूट्रलाइज करते हो, मतलब यू कैन राइट Na2NiOH होल 4। दिस इज आल्सो नोन एज दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। दो सोडियम को यहाँ ला, यहाँ पे 2- चार्ज। क्लियर? तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इन एक्सेस ऑफ NaOH, तो यहाँ पे लेस क्वांटिटी ऑफ NaOH। तो बेसिकली आपको एग्जाम में आएगा Nickel2+ reacts with NaOH to form compound A and B. So B compound is formed when sodium hydroxide is in excess. A compound is formed when there is less quantity of sodium hydroxide. Clear? तो ये सारे हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। I'll write over here hydroxides, for example Fe2+ है। 2+ मतलब दो यहाँ पे आपके OH ग्रुप्स लगेंगे, you will get FeOH whole twice। अगर Fe3+ है तो यहाँ पे आपका NaOH आएगा। 3+ है मतलब 3 OH ग्रुप्स लगेंगे, FeOH होल थ्राइस। अगर आपका क्रोमियम 3+ है, NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, 3 OH आयन्स लगेंगे, CrOH होल थ्राइस। These are the corresponding hydroxides that are formed. क्लियर? सबको क्लियर हुआ? मुझे बोलो एक बार सबको क्लियर हो गया। मुझे बोलो एक बार सबको क्लियर हो गया।